Supply Officer Mohali and co-founder of Pride University, along with the accompanying associate with ma'am. Please, we welcome you, ma'am, and sir, all the representatives. Our society, Community Hygiene and Public Health Society, has been working since long to promote awareness and practice of good hygiene within the student body and surrounding community, often by organizing various educational lectures by experts, outreach activities, by collaborating with our adopted village and Kudajasu health awareness campaigns. We promote student participation in various awareness activities to achieve contribution to the community and foster a sense of civic duty about the importance of public health. As we move forward, the highlight of today's session will be an interactive talk by a renowned dietitian, as I have already told, Ms. Dipinder Ma'am, trained from PGI Chandigarh, life member of Indian Dietetic Association and Nutritional Society of India. Before I introduce Ma'am, I would now request our HOD Ma'am, Dr. Sushma Gupta Ma'am, to formally welcome ma'am with a bouquet, and also I would request sir, Mr. Bushwaran sir, to accompany for the formal welcome. Welcome at the prestigious institute, ma'am and sir. Thank you. Thank you so much. A passionate contributor to the society. She has served more than 10,000 clients with significant results, treated more than 1,000 patients every year, distributed more than 5,000 certificates to those who have reduced more than 10 kgs weight. And surprisingly, I would say, cherry on the top or icing on the cake, she has given 30 gold coins to the clients who have reduced more than 25 kg. She has dealt with diseases like PCOS, skin problems, gastrointestinal problems, diabetes, chronic kidney disorders, blood pressure, thyroid, etc., etc. Presently, she is the founder of Diet University and successfully running and managing 2 clinics, one at Mohali and one at Sirhind. So I would not take much of the time between you and ma'am. I would now request ma'am to kindly come to the dais and share her expertise with you all. Thank you, ma'am. Respected HOD ma'am, Dr. Sushman ji, other faculty members, and dear students, today I am here to speak with you. Even I want to share my experiences with you and deliver a lecture on the topic PCOD, PCOS, skin care and general health care. So before I want to start, I want to ask a question, that is simple question, just आज कितने लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है? एवरीवन? ओके. तो कितनों ने नहीं किया? और कितने स्टूडेंट्स अपने टिफिन्स कैरी करते हैं एवरी डे? ओनली 2, 3, 4, 5, 6. तो अदर्स? अच्छा, हॉस्टलर्स, राइट. और सम आई थिंक सारे हॉस्टलर्स नहीं होंगे, राइट? डे स्कॉलर्स आर आल्सो देयर ना, तो वो अपने टिफिन्स भी नहीं कैरी करते हैं, कभी कभी करते हैं. ओके.
सो न्यूट्रिशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपने पूरा दिन पढ़ना है या पूरा दिन अपनी एनर्जी यूज करनी है, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप एवरी डे इन द मॉर्निंग यू हैव टू डू योर हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड देन you have to carry your fruits every day basis and then take lunch. Those who are hostelers, then they can have an option in the mess. Otherwise other students should carry their tiffins with them. So एक्चुअली अभी जो आज मेरा टॉपिक है पीसीओडी और पीसीओएस, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, नॉट मच डिफरेंस इज देयर, बट इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरे को ये क्लिनिक, जैसे 2 क्लिनिक्स हैं मेरे, सरंद एंड मोहाली में है सेक्टर 68 में। तो क्लिनिक्स ये मुझे करते हुए 9 इयर्स हो चुके हैं। आई एम इन दिस प्रोफेशन फ्रॉम द लास्ट 9 इयर्स। तो 9 इयर्स में मैंने ये देखा है कि जैसे इतनी बड़ी बड़ी डिजीजेज हैं, चाहे वो पीसीओएस हो, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो कैंसर है या किडनी डिजीज है, लिवर सिरोसिस, कोई भी डिजीज है, तो अल्टीमेटली कि अगर आपका न्यूट्रिशन सही है तो ये डिजीजेस कभी आपको आ ही नहीं सकती हैं। और इवन कोई भी डिजीज को मैं डिजीज मानती ही नहीं हूँ कि वो डिजीज है भी है, बिकॉज अगर इनिशियल स्टेज पे आप उस डिजीज को हैंडल कर लेते हो तो आपको वो डिजीज मतलब बॉडी में आपकी वो बनती ही नहीं है। बट हम लोग अवेयर ही तब होते हैं जब वो कोई भी डिजीज जो है वो 2nd स्टेज पे, 3rd स्टेज पे या 4th स्टेज पे पहुंच जाती है, तो उस टाइम पे हमें खुद ही नहीं पता चलता कि अब क्या करें। और हम लोग ऑलवेज मेडिसिन के बारे में सोचते हैं कि डिजीज का ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन है, बट नहीं, आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है, आपका न्यूट्रिशन है, तो वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज आ ही नहीं सकती। बट हमारा आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, तो जैसे हम जब छोटे थे ना, तब कोई ऐसी ऑप्शन नहीं थी, जोमेटो की कोई ऑप्शन नहीं होती थी, कोई बर्गर पिज्जा वो भी नहीं थे। तो उस टाइम पे हमें होता था कि जो घर पे बना वही खाना है, और इवन हमने कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं किया कि आज क्या बना है या हमें और क्या ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये कंपल्सरी जो दाल बनी है, सब्जी बनी है, हमें वही खानी होती थी। बट आजकल कुछ तो हमारे मॉम्स को ही हो गया कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दें या हम अपने बच्चे की पसंद का उनको दें। तो बच्चे वो करते करते हमने उनकी हैबिट्स इतनी बिगाड़ दी है, तो बच्चे आज भी जो घर पे बना वो तो उनको पसंद ही नहीं आता, वो खाना ही नहीं चाहते। और लेकिन जो उनको पसंद है वो हमें पसंद नहीं आता है एज अ हेल्दी न्यूट्रिशन। तो इसीलिए वो उनकी जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट होती जा रही है। तो आज जो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं पीसीओडी, तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन टुडेज लाइफ। मतलब ये बड़े दुख की बात है कि एवरी फिफ्थ वुमन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी और पीसीओएस। तो हम ये क्यों हो रहा है, इसका सिर्फ एक ही कारण है, हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ ये वर्ड नहीं है, बट ये इतनी बड़ी टर्म हो गई है कि बच्चों को पता ही नहीं कि हमने क्या खाना है और कैसे खाना है। ना ही हमारी फूड हैबिट्स ठीक है, ना ही हमारे कुकिंग मेथड्स ठीक है, और ना ही अनफॉर्चुनेटली जो हमें खाना मिल रहा है वो उससे भी खराब है। मतलब सब में केमिकल्स इतने ज्यादा हो गए हैं, अडल्ट्रेशन इतनी ज्यादा है कि अगर सही तरीके से पहुंच भी पा रहा तो वो भी हम खा के बीमार ही हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव अ ऑप्शन कि उसमें वो भी मैं आपको बताऊंगी एट द एंड कि हमें क्या करना चाहिए, तो कैसे हमें ऐसी सिचुएशन से टैकल कर सकते हैं। तो अभी जो है PCOD, what is PCOD or PCOS? PCOD is polycystic ovarian disease and PCOS is polycystic ovarian syndrome. तो इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। PCOD इज जस्ट अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, गर्ल्स में ऑब्वियसली ये होती है प्रॉब्लम। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मींस आपके पीरियड्स स्कैंटी हैं या पीरियड्स इरेगुलर हैं, या आपको फ्रीक्वेंट पीरियड्स आ रहे हैं, या फिर उसमें फ्लो बहुत कम है या फ्लो बहुत ज्यादा है, या समटाइम्स कंटिन्यूसली 40 डेज 50 डेज वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हम उसको पीसीओडी कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो यू नो
कि जैसे हम ओवुलेशन पीरियड होता है हमारा, ओवुलेशन पीरियड के दौरान जब एग मैच्योर होता है तो उसके बाद वो रप्चर हो जाता है अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता है तो देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। एंड लेकिन इन केस ऑफ पीसीओडी, पीसीओडी में क्या होता है कि आपका ओवुलेशन कंप्लीट ही नहीं होता, आपको जो एग है वो मैच्योर ही नहीं होता, मैच्योर होने की बजाय वो साइज उसका स्मॉल रहता है और वो सिस्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जो सिस्ट फॉर्मेशन है, तो जब सिस्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो सिस्ट बहुत ज्यादा होने से वो जो ओवरी है उसके अंदर अरेंज हो जाते हैं, तो वो एक नेकलेस की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। तो जब वो नेकलेस की फॉर्म में अरेंज होते हैं तो उससे ही ओवरी का जो साइज है वो बल्की हो जाता है, मतलब बल्की ओवरीज होने से वहां पे प्रेशर पड़ता है, यूट्रस हैवी महसूस होता है, उसकी एपिडर्मिस काफी हैवी हो जाती है। देन इसमें here you can see the picture, ये इसमें आप देख सकते हो कि ये देखो ये सारे सिस्ट्स हैं जो ये ऐसे एक माला की तरह, एक नेकलेस की तरह बन जाते हैं और इसमें अरेंज हो जाते हैं। देन इसके कॉजेज क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस? कॉजेज में एक तो है ओबेसिटी, जो मेन कॉज है। ओबेसिटी में जब वेट गेन होता है, वेट गेन होने से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। एंड व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, किसी को पता है? एनीबॉडी नोज? नहीं का। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जैसे हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में जाके? सॉरी, हाँ, मतलब वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज ब्लड में आता है, ब्लड में आने के बाद उसको सेल्स में पहुंचना है। फॉर व्हाट पर्पस? टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी सभी सेल्स में जाती है और वो सेल्स एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिक फंक्शंस। एंड जब वो ग्लूकोज बन जाता है तो ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? इंसुलिन। तो जो बॉडी में पैंक्रियाज है वहां से इंसुलिन रिलीज होती है, वो इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाती है। अब जब हमारे में मोटापा आ जाता है या हम ओबीज हो जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जो सेल्स में रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को मतलब पकड़ते हैं या रिसीव करते हैं, तो उनके ऊपर फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो वो रिसेप्टर सेल्स एंड इंसुलिन का आपस में कनेक्शन नहीं हो पाता, जिस वजह से समझो कि आप ये समझ लो कि एक डोर बंद है और वहां पे सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है और सिक्योरिटी गार्ड ने डोर खोलना है, वो इंसुलिन खोलेगा एंड फिर वो ग्लूकोज अंदर जाएगा सेल्स के अंदर। तो अब वहीं पे क्या है कि इंसुलिन सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, वो लॉक तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से वो ओपन नहीं होता है एंड ओपन ना होने की वजह से ग्लूकोज बॉडी में होते हुए भी सेल्स तक नहीं पहुंचता है। अब ये देखो कि ग्लूकोज भी है बॉडी में, सेल्स को एनर्जी भी चाहिए बट और इंसुलिन भी है बॉडी में, बट तीनों आपस में उनका कोलैबोरेशन नहीं हो पाता, जिस वजह से ग्लूकोज होने की वजह से भी जो बॉडी है ऑलरेडी, जो पेशेंट है वो वीक महसूस करता है। मतलब इस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं कि जब इंसुलिन भी पड़ी है बट वो अपना काम भी नहीं कर पा रही है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी जो ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो बॉडी में आती है। एंड इसके अलावा जो एंड्रोजन है, एक मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, जो एंड्रोजन है वो उसमें फीमेल में ज्यादा हो जाता है जब उसका नंबर, मतलब है तो मेल हार्मोन है बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये फीमेल में नहीं होता है, ये फीमेल्स में भी होता है। तो फीमेल्स में एड्रेनल ग्लैंड में प्लस ओवरीज में थोड़े अमाउंट में ये फॉर्मेशन इसकी होती है। और जो ये एंड्रोजन है तो जब ये फीमेल्स में होते हैं तो फीमेल में इनका मेन कार्य क्या होता है, क्या काम होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूट्रस में कंट्रैक्शन होती है ना, या ड्यूरिंग बर्थ जब बेबी ने बर्थ लेना होता है तो कंट्रैक्शन होती है, वहां पे जो पेन्स, लेबर पेन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वहां पे एंड्रोजन उसको कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि एंड्रोजन बिल्कुल ना हो, मतलब बॉडी में अगर एंड्रोजन नहीं होगा तो उसके बाकी काम नहीं होंगे। तो इसलिए अब
एंड्रोजन का अमाउंट जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है, एस्ट्रोजन जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें भी पीसीओडी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अब इसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स वो भी आते हैं कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे सुबह उठे तो सुबह उठ के पहले तो लेट उठे, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, या उसका खाना जब मिल रहा है तब खा रहे हैं और जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, एंड अनहेल्दी खा लिया। और उसके बाद रात को कोई सोने का टाइम नहीं है, सोने का नहीं है तो नेचुरली उठने का टाइम नहीं है, और लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उसके बाद अदर फैक्टर होते हैं, जैसे बॉडी में इन्फ्लामेशन होगी। दिस इज द कॉमन फैक्टर कि इन्फ्लामेशन की वजह से हमें बहुत सारी डिजीजेज आती हैं। बट हाँ, ये भी है कि इन्फ्लामेशन ये भी नहीं कि बिल्कुल भी ना हो, बिकॉज अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगी तो हमारी बॉडी में जो अगर प्रॉब्लम, सपोज किसी का कट लग गया, तो कट लग गया वहां पे इन्फ्लामेशन होती है, तो वहां पे जितने भी हमारी बॉडी के सैनिक है वो वहां पे जाते हैं, WBCs हो गए, मतलब जितने भी इम्यून सेल्स है, तो उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और वो उस चीज को क्योर करना शुरू कर देते हैं, वहां पे कोगुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इन्फ्लामेशन ना हो तो ये सब चीजें नहीं होंगी। तो इसलिए कुछ अमाउंट तक इन्फ्लामेशन बॉडी में होनी चाहिए, बट एक्सेसिव इन्फ्लामेशन इज डेंजरस, तो वो बाकी सभी बीमारियों को बुलावा देती है, जैसे कि थायराइड हो गया, पीसीओडी होगी, डायबिटीज होगी, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां इससे पैदा हो जाती हैं। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे मदर्स को हैं तो आगे बच्चों को वो ट्रांसफर हो जाती हैं। तो उसके बाद सिम्टम्स है पीसीओडी की। सिम्टम्स बहुत सारे आपने सुने भी होंगे कि क्या क्या होता है। मेनली तो जैसे मैंने पहले बताया कि पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके बाद जैसे ड्यूरिंग पीरियड्स किसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हेडेक हो गया, पेन्स रहने शुरू हो गए, क्रैम्प्स पड़ते हैं, एंड हेयर ग्रोथ होगी, अंडर चिन हेयर ग्रोथ होगी, चेस्ट पे हेयर ग्रोथ होगी, या वॉइस उसकी बहुत ज़्यादा बॉयश हो जाती है, एंड उसमें नेक पे ब्लैकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी सिम्टम्स हैं, मतलब जो स्किन है वो डिस्कलरेशन होना उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारी सिम्टम्स ऐसे होती हैं कि जिस वजह से मतलब हम अपने आप को, जो भी पेशेंट है वो अपने आप को बड़ा ही डिस्कम्फर्ट वो महसूस करता है, राइट। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा हेयर फॉल हो गया, एंड्रोजन से बढ़ने से हेयर फॉल भी हो जाता है। उसका मेडिकल डायग्नोसिस वो है, या तो हम लोग हार्मोन्स के टेस्ट करते हैं, या फिर जैसे स्कैन होता है, स्कैन होने से भी, जैसे फर्स्ट मैंने पिक्चर दिखाई थी तो उसमें स्कैन होके तो वैसी वाली पिक्चर्स दिख जाती हैं, तो जिसमें पता चलता है कि ये पीसीओडी है या नहीं है। अच्छा, एक और हैरानी की बात है कि 50% या मोर देन 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पीसीओडी होती नहीं है, बट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इवन पीछे भी एक न्यूज आई थी, जो गुलशन कुमार है ना, वो उसमें सिंगर थे पहले गुलशन कुमार जी, तो अब तो वो है नहीं है। तो उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उसको कैंसर हो गया था और उसकी कीमोथेरेपी होती रही, और बट बाद में पता चला, उसकी डेथ भी होगी, बट बाद में पता चला कि उसको कैंसर था ही नहीं, बेवजह वो होती रही। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि मतलब बिना बात के वो ट्रीटमेंट होता रहता है, बट वो एक्चुअल में वो डिजीज होती नहीं है। तो नाउ डेज यू हैव टू अवेयर अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर डिजीज कि क्या है। तो अगर आप एक ओपिनियन कहीं से लेते हो तो डेफिनेटली तो आपको कहीं दूसरी जगह से भी दूसरा ओपिनियन लेना जरूरी है। एंड मोरओवर आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या बता रही है। मतलब जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि कोई ऐसे टेस्ट करने की कोई प्रोविजन नहीं होती थी, मतलब कोई लैब्स नहीं होती थी, कोई ब्लड टेस्ट का सैंपल नहीं लिया जाता था, बट वैद्य या तो वो उसकी नब्ज देख के पहचान लेते थे, या फिर उनकी कोई बॉडी पे सिम्टम्स है वो देख के पहचान लेते थे कि ऐसी प्रॉब्लम है। तो बट आजकल क्या होगा, ट्रेंड ही हो गया कि 3 महीने बाद टेस्ट कराओ, 6 महीने बाद टेस्ट कराओ। तो कुछ ना कुछ जब भी आप टेस्ट कराओगे कुछ ना कुछ तो आना ही है उसमें, ठीक है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स हर टाइम कुछ ना कुछ खाता रहता है, तो जब खाएंगे तो उससे कोई ना कोई लेवल तो आपको होना ही है, राइट। तो इसलिए ये चीजें जो है बहुत इनके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा कि मतलब वो डिजीज जो एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती है नहीं कर रही है। तो जब अगर राइट डायग्नोस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है।
एक तो ट्रीटमेंट सीधा साधा सा है जो अब तक मेडिकल लाइन में लोग देते हैं या डॉक्टर्स या एलोपैथी में जो दिया जाता है, वो है आपको हार्मोन्स दिए जाते हैं, आपको टेबलेट ऐसी दी जाती है जो बर्थ कंट्रोल टेबलेट्स होती हैं, और जिनका इतना साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है कि बर्स्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, बेली फैट इंक्रीज हो जाता है, हिप पे फैट, थाइज पे फैट आना लग जाता है। मतलब ये बहुत डेंजरस कंडीशन है, और जब तक ये कंडीशन बढ़ेगी तो आपकी पीसीओडी कभी ठीक ही नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन, एंड राइट सॉल्यूशन इज हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या है कि व्हाट टू ईट इन पीसीओडी, तो क्या खाना चाहिए, तो मतलब वो हमारा फील्ड है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, कोई मुझे बताएगा कि किसी को थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो कि क्या खाना चाहिए? वैसे तो सामने आ भी रहा है, नहीं? तो एनी हाउ हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या है कि 5 पार्ट्स होते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के, या आप ये कह लो कि उसमें जो इसके 5 पिलर्स होते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के। 1 इज फूड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। यू नो, आयुर्वेदा में हमारी डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती हैं। कभी किसी ने सुना वात पित्त कफ? सुना? तो ये जो वात पित्त कफ है, तो ये सिर्फ 3 टाइप्स की ये बॉडी है। आगे इनके कॉम्बिनेशंस में बन के ये हमारे पास टोटल 10 टाइप्स की बॉडी टाइप्स हो जाती हैं, राइट? तो हमें, जैसे या आपने कई बार सुना होगा कि कोई हल्दी वाला दूध पी रहा है, तो हल्दी वाला दूध किसी को तो बहुत सूट करता है, बट किसी को पीने से गर्मी हो जाती है, किसी को पीने से लूज मोशंस भी हो जाते हैं। सुना? या किसी को बनाना बहुत सूट करता है, किसी को बनाना बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। या कई बार होम रेमेडीज यूट्यूब पे सुन के किसी ने कर ली, घर में किसी ने यूज की और उसने फिर दूसरे को बताया कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मैंने ठीक कर ली, तुम भी ये ठीक कर लो। तो जब दूसरा बंदा यूज करता तो वो कहता है यार मेरे को तो इतनी प्रॉब्लम्स होगी, तूने क्या बता दिया? ठीक है, तो बेसिकली वो है बॉडी टाइप का इफेक्ट। जब बॉडी टाइप, अलग अलग बॉडी टाइप्स हैं, तो उसमें उनके लिए न्यूट्रिशन भी अलग अलग जरूरत होती है। ये नहीं है कि हर एक बॉडी को सेम टाइप का आटा यूज होगा, या सेम टाइप के फ्रूट्स उसके लिए सूटेबल होंगे, या सेम टाइप का उसके लिए वेजिटेबल्स यूज होंगी, राइट? तो ये आयुर्वेदा में दिया गया है, और ये इसके लिए कोर्स, बहुत शॉर्ट कोर्सेज भी आते हैं। हमारी राइट यूनिवर्सिटी में भी कोर्सेज हैं, तो वो भी किए जा सकते हैं। पर मेरा तो ये है कि हर एक स्कूल में, इवन की जो स्कूल एजुकेशन होती है, तो उसमें जरूरी ये होना चाहिए कि कंपलसरी पार्ट होना चाहिए ये एजुकेशन का, कि जिसमें आयुर्वेदा में ये जो दिया, ताकि हर एक पर्सन को पता चल सके कि उसकी बॉडी टाइप क्या है, तो उसके लिए सूटेबल फूड्स कौन से रहेंगे ना। तो कभी आगे टाइम मिले तो हम जरूर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड अनदर फैक्टर इज फूड अकॉर्डिंग टू द राइट सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे हम फ्रूट्स भी खाते हैं, पता है कि एवरीडे फ्रूट खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फूड खाना चाहिए, बट उसका सीक्वेंस क्या है? कई लोग रोटी खाई और रोटी के बाद इमीडिएटली भी आज फ्रूट तो रह गए थे, बाद में फ्रूट खा लिए, या रोटी खाई, रोटी के साथ सैलेड खा लिया, या आजकल पिन्नी खाते हैं ना, तो टीचर्स में भी शायद करते हो कि स्कूल में गए तो खाना खाए, उस पर यार चलो ये मीठा लड्डू हो जाए या पिन्नी हो जाए तो हम ये खा लेते हैं। तो दिस इज नॉट द राइट सीक्वेंस, दिस इज अ रॉन्ग सीक्वेंस। राइट सीक्वेंस इज कि आप पहले मॉर्निंग में फ्रूट्स खाइए, मॉर्निंग में फ्रूट का टाइम होता है, देन खाने से पहले सैलेड खाइए हमेशा। हाँ, बट कुछ बॉडी टाइप्स होते हैं जिनकी कोई अगर आईबीएस की प्रॉब्लम हो, कुछ और हो, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होती है, अदरवाइज ऐसे सीक्वेंस फॉलो करना है। जैसे आयुर्वेदा में दिया गया है कि मीठा आपको खाने से पहले खाना चाहिए, ना कि बाद में खाना चाहिए, ठीक है? रात को लोग दूध पीते हैं, आयुर्वेदा में दिया गया कि जो दूध है उसका पीने का टाइम वैसे रात को होता है, आफ्टर डिनर। बट अब लोग, हमें, मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती है कि मैम उसमें तो अगर दिया हुआ तो पीना चाहिए, अच्छा होता है दूध पीना, तो रात को क्यों नहीं देते हो आप? अब जब आयुर्वेदा लिखा गया था 5000 साल पहले की बात है, तब लोग 6 बजे सो जाते थे, लाइट नहीं होती थी। तो अब क्या है कि लोग कितने बजे सोते हैं? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो अब सोचे कि बेड टाइम दूध पीना अच्छा होता है, आयुर्वेदा में लिखा गया, तो वो तो नहीं है। तो अब बेड टाइम मतलब 12 बजे आप दूध पी के सोओगे तो बॉडी कहाँ क्लींस करेगी? ठीक है, तो बहुत सारी चीजें पहले से चेंज हो रही हैं। हमारा जैसे लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, तो उसमें बहुत सारी चीजें कुछ मतलब अदर तरीके से हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। कोई बिल्कुल दूध छोड़ ही नहीं सकता। किसी को बहुत ही ज्यादा कभी क्रेज है पीने का, तो वो शाम को पी सकता है, 4 बजे पी सकता है। अदरवाइज, बट फॉर पीसीओडी दूध और दूध जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पीसीओडी में वो अपने सारे अवॉइड करने हैं। एंड उसके बाद
थर्ड जो पार्ट पिलर है हेल्दी लाइफस्टाइल का वो है टाइमिंग ऑफ द फूड। टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जैसे रात का खाना आप लेट खाओगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी क्लींस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए बेटर है कि आप रात का खाना तो एटलीस्ट 7 o'clock तक फिनिश कर लो, अगर कुछ और नहीं कर सकते हो तो अगर इतना भी कर लोगे तब भी आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए कंसीडर हो जाएंगे। और उसके बाद आफ्टर दैट अगर आपको भूख लगती है, आप 2 बजे तक बैठ रहे हो कहीं, मतलब कोई भी एग्जाम्स डेज में, तो उस टाइम पे आप कोई नट्स, सीड्स या मखाना, रोस्टेड चना टाइप ऐसी चीजें खा सकते हो, है ना। और उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल का नेक्स्ट पिलर आता है राइट कॉम्बिनेशंस। आपने कुछ सुना अगर ऑड कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब कई बार होता है कि हमने कोई चीज खाई है, फंक्शन पे गए हैं, कोई चीज खा ली, उसके बाद पेट खराब हो गया, है ना, होता है ना। तो कभी किसी का कोई ऐसा इंसिडेंट हो, याद हो, अभी कोई शेयर करना चाह रहा हो? नहीं, चलो याद कर लेना बाद में। तो उसमें जैसे हम लोग जूस पीते हैं, अब आजकल गाजर का भी जूस आ रहा है, किन्नू का भी जूस आ रहा है, तो लोग सोचते हैं कि यार दोनों का ही फायदा ले लो, दोनों को मिक्स करके पी लो, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करके पियेंगे, स्टमक अपसेट हो जाएगा, बिकॉज वो आपके गट हेल्थ के लिए सही नहीं है। एंड उसमें फिर आपको लूज मोशंस हो सकते हैं या फिर आपका पेट खराब हो सकता है। एक ना मेरे पास क्लाइंट आते हैं, उनको वो क्या कहते हैं, उनको आयरन डाइजेस्ट नहीं होता था, मतलब वो उन्होंने बीटरूट और कैरेट का जूस लेना या कैरेट और बीटरूट खानी, उसके बाद उनका पेट अपसेट हो जाना। मतलब वो कह रहे कि इतना घूम लिए वो सभी जगह, अलग अलग हॉस्पिटल्स में, इवन पीजीआई तक भी जाया है, और उसके लिए बाद में उनको दवाइयां इतनी खानी, कभी एंटासिड ले लिया, इनो भी पी लिया, सब कुछ कर लेना, वो ठीक ही ना होना। और उसके बाद वो एक इंजेक्शन लेते थे, इंजेक्शन के बाद कहीं जाके उनको रिलीफ मिलता था 6-7 आवर्स के बाद। बहुत पूछा, कहीं कुछ नहीं पता चला, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, परसों की बात है वो पेशेंट की, तो उसने जूस पिया, जूस मैंने उसको रिकमेंड किया था, तो मैंने उसको दिया था कैरेट, बीटरूट प्लस आंवला, ये तीनों का जूस दिया था। तो वो जूस पीने के बाद उसको कुछ नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि मेरा ये वाला, वो टीचर है तो मेरा ये टाइम सूट नहीं करता, तो मैं इसको इवनिंग में ले लेती हूँ। तो चलो इवनिंग में जूस नहीं पिया, उसने क्या किया, कैरेट और बीटरूट खाई, और अगेन उसको सेम प्रॉब्लम फिर आ गई। तो बेसिकली उसमें आयरन था, आयरन की एब्जॉर्प्शन उसको नहीं हो रही थी। जब मैंने उसको जूस दिया तो विटामिन सी था, आंवला था साथ में, जिसने उसको इजीली एब्जॉर्ब कर दिया। तो समटाइम्स ऐसा कॉम्बिनेशन होते हैं जो इजीली एब्जॉर्बेबल होते हैं, कई बार नहीं होते। बट जैसे पालक पनीर खाते हो, ऑड कॉम्बिनेशन है, सभी जगह डिश चलती है, फंक्शंस में होती है, हम लोग कितना रेलिश करते हैं, बट ऑड कॉम्बिनेशन है वो। दूध के साथ आपको सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, दही के साथ देसी घी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑड कॉम्बिनेशन है जो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा रहते हैं। और इसी तरह से जो आगे हम इसमें चलते हैं, अब पीसीओडी की बात हो रही है। हाँ, एक फाइनल इसका पिलर है फूड अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजनल खाओ एंड रीजनल खाओ, सीजनल खाओ एंड रीजनल खाओ, जो आपके यहाँ होता है वो खाइए, और जो आपके सीजन में होता है तो वो खाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पीसीओडी के लिए हमें कैसी डाइट चाहिए, एक तो हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट नीडेड है पीसीओडी में, जिसमें आप मोस्टली कोशिश कीजिए अगर वेजिटेरियन डाइट हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट आपकी हार्मोन्स को इम्बैलेंस क्रिएट करती है। और आजकल आपको पता है कि जितने भी वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, चिकन होगा या फिर हम लोग ये जल्दी उनको ग्रो करने के लिए हार्मोन्स के जो स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो वो स्टीरॉइड इंजेक्शन देने के बाद जब हमारी बॉडी में वो चीजें जाती हैं तो वो खाने लायक नहीं रहता, तो वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो इसीलिए वेजिटेरियन प्रोटीन क्या होता है कि उसमें क्या हो सकता है, स्प्राउट्स होते हैं एंड दालें हैं, पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, ये सब चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो देन आपका नट्स एंड सीड्स, नट्स एंड सीड्स में आप फ्लैक्स सीड, मेलन सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स बहुत सुटेबल हैं, तो आप उनका इंक्लूड कीजिए। बल्कि आजकल एक सीड साइकिलिंग का कॉन्सेप्ट भी चला हुआ है, तो सीड साइकिलिंग आप कर सकते हैं इनिशियल डेज में। आफ्टर पीरियड्स 15 डेज तक आप फ्लैक्स सीड एंड पंपकिन सीड का इंटेक कीजिए, एंड आफ्टर ओवुलेशन नेक्स्ट 15 डेज या मतलब जब तक पीरियड्स नहीं आते हैं तब आप सनफ्लावर सीड्स एंड सेसमे सीड्स का इस्तेमाल करना आपको जरूरी है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी ये पीसीओडी में है अदर सोर्सेज, जो फैट्स है, फैट्स में क्या है, कोकोनट ऑयल सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट माना जाता है कोकोनट ऑयल।
इसके लिए। एंड सिलेनियम जो है मिनरल वो जरूरी है, वो आपके नट्स एंड सीड्स में होता है। उसके बाद इन्फ्लामेटरी फूड्स वो भी आपको अवॉइड करने होते हैं। इन्फ्लामेटरी फूड्स कौन से हैं? जो इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, जैसे राजमा चना अगर हम कुकर में बनाते हैं तो वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। जितने भी जैसे साग है, पालक है, वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। गोभी होगी, आजकल सारे फूड ऐसे, गोभी होगी, है ना, तो ये रात को नहीं खाने चाहिए और दिन में खाए जा सकते हैं, गोभी वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड देन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिच फूड इसमें इंक्लूड करने चाहिए। मैग्नीशियम रिच क्यों फूड इंक्लूड करने चाहिए? क्योंकि ये हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, राइट। तो इसीलिए मैग्नीशियम रिच फूड में भी जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्लस हमारे जो नट्स एंड सीड्स हैं वो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे की फूड्स अवॉइड कौन से करने चाहिए? बेसिकली जितने भी रिफाइंड कार्ब्स हैं, मतलब जब आपको कोई आइडिया ना हो कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, आप ये देखो किसी भी ग्रेन की कोई भी रिफाइंड फॉर्म, किसी भी ग्रेन की कोई भी रिफाइंड फॉर्म आपको नहीं खानी है। जैसे कि व्हीट है, अब व्हीट की रिफाइंड फॉर्म हो क्या होगी? मैदा हो गई, तो वो आपको अवॉइड करनी है। एंड ऐसे शुगरी बेवरेजेस जितनी है वो अवॉइड करनी है। जितने भी फ्राइड ऑयल्स है, फ्राइड मैटर है, वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। एक आपको पता है ग्लिसेमिक इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज ग्लिसेमिक इंडेक्स? डू यू नो? नहीं, ग्लिसेमिक इंडेक्स होता है कि कोई भी फूड जब हम खाते हैं वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कितना राइज करता है, कितना जल्दी राइज करता है। जितना वो जल्दी फास्ट राइज करता है उतना उसका ग्लिसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। तो हमें हमेशा ही लो ग्लिसेमिक इंडेक्स जो फूड है वो लेना चाहिए, और इससे क्या होगा कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं होगा और जो शुगर है उसको कंट्रोल करेगा। एंड कैफीन वगैरह जितना होती है, कॉफी आजकल ट्रेंड हो गया, कौन कौन कॉफी बहुत ज्यादा पीता है? कोल्ड कॉफी या कोई भी कॉफी? हाँ, वैसे तो और भी पीते होंगे बट सब में गट्स नहीं है ना हाथ खड़े करने का। तो कॉफी जो है वो इसमें नहीं पीने। जिसको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो कॉफी, टी, ये सब चीजें अवॉइड करें, और इससे भी हार्मोनल इश्यूज होते हैं। तो ये तो थी कि हमें फूड्स क्या अवॉइड करने चाहिए, क्या लेने चाहिए। एंड इसके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे प्लान भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। एक इसमें जो आपको अवेयरनेस जिसके लिए चाहिए वो है कि जब भी आप सपोज किसी को ऐसी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर आपको हार्मोन्स की मेडिसिन देंगी। एक उसमें मेटफॉर्मिन दी जाती है। मेटफॉर्मिन क्यों दी जाती है? वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए दी जाती है, मतलब इसको प्रिवेंट करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको शुगर है, पर हम लोगों ने जितने भी, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट थे पीसीओडी के, तो पीसीओडी में एक क्लाइंट हमारे पास ऐसी थी, शी वॉज मैरिड और उसको पीरियड्स इरेगुलर रहते थे और हमेशा वो पिल्स लेके ही पीरियड्स उसको आते थे, और उसकी अंडर चिन हेयर ग्रोथ इतनी ज्यादा थी कि उसको एवरी फोर्थ डे पे वैक्स करवानी पड़ती थी। अब सोचो, कहीं भी जाना तो वैक्स करवा के जाओ। जब उसने मुझे ज्वाइन किया, मतलब महीने बाद उसके पीरियड्स तो रेगुलर हो गए। मतलब क्योंकि मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है पहले दिन मैं उसकी मेडिसिन छुड़वा देती हूँ पीसीओडी की, चाहे वो कोई भी ले रही हो। और क्योंकि लेट्स सी कि देखते हैं कब तक पीरियड्स आते हैं, और विद इन 1 से लेके 3 महीने में रिज्यूम हो जाते हैं पीरियड्स। तो उसके पीरियड्स भी रिज्यूम हो गए, और उसकी जो अंडर चिन ग्रोथ जो 4th डे पे आती थी 1 महीने बाद होनी शुरू हो गई। मतलब 1 महीना आराम से निकल जाता था, उसको वैक्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब डाइट के साथ ऐसे रिजल्ट है जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करते हो। एक और पीजीआई के पेशेंट थी, वो सेक्टर 22 में रहती हैं वो लेडी, और उसकी रिसेंटली मैरिज हुई थी। अब मैरिज तो खैर 5 इयर्स में भी हो गए हैं उसके। उसको भी ऐसी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, और सिस्ट काफ़ी ज़्यादा उसको थे, बल्कि थी वो उसकी बॉडी पूरी। तो जब उन्होंने मेरे पास आए तो वैसे ही किया, मैंने भी मेडिसिन उसकी बंद करवा दी जैसे कि वो सबकी करवाती हूँ। तो मैंने कहा देखते हैं कब तक पीरियड आते हैं। तो 3 मंथ्स के बाद पीरियड्स रिज्यूम हुए। तो उसके पीरियड्स रिज्यूम होने के बाद फिर आ गए, फिर बंद हो गए, फिर आ गए, ऐसे होने लग गया। फिर मैंने बोला कि स्कैन करवा के आओ। जब स्कैन करवाया तो देखा तो जितने भी उसके सिस्ट थे सारे रिमूव हो गए। और पीजीआई में डॉक्टर्स ने कहा, जो गायनी की डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है ऐसे, या तो आपकी रिपोर्ट्स गलत है या क्या है।
तो उसने कहा कि नहीं मैंने डाइट फॉलो किया। कहती है मेडिसिन तो हमने दी थी, वो कहती मैंने वो खाई नहीं है। तो मतलब आप देखो, और उससे अनफॉर्चुनेटली एक कि उससे पहले वो एक जो ओवरी है वो ऑलरेडी रिमूव करवा चुकी थी अपनी। तो ये देखो कि हमें उस टाइम पे इतना दुख लगा कि वो थोड़ी पहले आ जाती तो कम से कम उसकी ओवरी रिमूव ना होती, और उसने आगे कंसीव भी करना था। मतलब ऐसी ऐसी लोगों की स्टोरीज हैं कि मतलब और ये सबसे बड़ी बात है कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हो। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, और तभी यंगस्टर्स में इतनी ज्यादा आ रही है, टीनेजर्स में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो कभी भी कुछ भी खाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करना है। तो इसके साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप लिख के रख सकते हो। तो उसके बाद हम आपको एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें आप राइट डाउन कर सकते हो। अगर बाद में टाइम मिलता है तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेस ग्लो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर, बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ फेस ग्लो, किस किस को फेस ग्लो चाहिए? मेरे को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले हम क्या देखते हैं? यस, फोन भी देखते हैं। तो उसके बाद जो फोन देखना तो अच्छी बात नहीं है, उसके बाद हम शीशा देखते हैं और देखते हैं यार कि कैसी लग रही हूँ, ये हो गया, आज आंखों के नीचे स्वेलिंग तो नहीं है, आज ऐसे तो नहीं है। ठीक है, डार्क सर्कल कितने हो गए हैं, राइट? तो आप किस किसने मेडिसिन खाई हैं अभी फेस ग्लो के लिए कभी, या पिंपल्स के लिए, किस चीज, कोई भी फेस की कोई ऐसी चीज के लिए मेडिसिन किस किसने खाई हैं? किसी ने नहीं खाई? तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खाई है। तो अदरवाइज जब भी हमें फेस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो पिगमेंटेशन हो गए, पिंपल्स हो हमें, या फिर कोई डार्क सर्कल हो गए, ठीक है, तो ये चीजें जब भी क्रिएट होती हैं तो हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कौन सी मेडिसिन ली जाए, क्या या मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो क्यों ये हो रहा है ना? सिर्फ ये जितनी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो फेस है या बाकी बॉडी है, आपकी स्किन है, तो वो क्यों आती है? जब आपकी गट हेल्थ सही ना हो, क्योंकि जो पेट के अंदर है वही बाहर दिखेगा, जो पेट के अंदर है वही बाहर दिखेगा आपको। तो इसीलिए जो खाओगे वही फेस पे आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इवन हमारे इमोशंस, जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम एंगर आता है हमें, या जेलसी होती है किसी से, या बहुत सैडनेस हो जाती है, तो इतने जितने भी ये इमोशंस हैं, तो ये सब हमारे फेस ग्लो के लिए सही नहीं है। और हमेशा खुश रहेंगे तो हमारा फेस ग्लो नेचुरली एनहांस होगा ना। जितना हमारे अंदर डर रहेगा, हमारा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, उतना ही हमारा फेस ग्लो कम होगा। और इसके लिए जो फूड है, जो इसके लिए फूड है, वो आप क्या क्या ले सकते हो जिससे आपका फेस ग्लो इनहांस हो? सबसे पहले तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितना आप रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे उतना आपका फेस ग्लो इनहांस होगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ऐसे नहीं कि कोई आपने बहुत फैंसी खाने हैं, आप सीजनल खा सकते हैं। सीजनल जो, और जो आपके, जैसे मैंने पहले बोला था, सीजनल एंड रीजनल, जो आपके रीजन में मिलते हैं, जो सीजनल है। आजकल किन्नो आ रहे हैं, कैरेट आ रही है, तो उससे फेस ग्लो आपका इनहांस होता है। जैसे मैंने वो बताया जूस, बीटरूट, आंवला एंड कैरेट। अगर आप 40 डेज, ओनली फॉर 40 डेज इसका इंटेक कर लो तो आपके सारे फेस के पिगमेंटेशंस चली जाएंगी, आपका फेस ग्लो इनहांस हो जाएगा। ओनली फॉर 40 डेज, सिर्फ इतना करना है, और आज से ही करके देख लेना, ठीक है। अगर किसी को स्किन ग्लो चाहिए तो उसके लिए ऑरेंज जूस क्लीन के लिए, फेयरनेस ऑफ स्किन, तो उसके लिए ऑरेंज जूस आपके लिए बहुत अच्छा है, तो ऑरेंज जूस पिए, ठीक है। और वेजिटेबल्स में एक सैलेड, फुल प्लेट ऑफ सैलेड आप खाने से पहले जरूर कंज्यूम करें। इवन मिल्क को आप अवॉइड कीजिए, कर्ड आप ले सकते हैं, प्रोबायोटिक्स को इंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो ये आपके जरूरी पार्ट हैं। और एक आपके स्किन केयर रूटीन आपने जरूर फॉलो करनी है। स्किन केयर रूटीन के लिए पहली बात, फेस पे वो चीजें लगाइए जो आप खा सकते हैं। आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, भागवत जी कहते हैं कि जो चीज आप नहीं खा सकते वो आपके स्किन के लिए भी नहीं है। तो जो भी आपको मिला है, खीरा मिलता है, टमाटर मिलता है किचन में, वो सब लगाइए आप फेस पे। और रात को सोने से पहले फेस को
क्लीन करना बहुत जरूरी है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो मिल्क से भी किया जा सकता है, या जैसे हल्दी है या उपटन है बना सकते हैं हम मुल्तानी मिट्टी का, तो उससे क्लीन किया जा सकता है। और उसके बाद आप सैफरन ऑयल अप्लाई कीजिए, जोजोबा ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, स्किन के ऊपर कोकोनट अप्लाई कर सकते हैं, इवन देसी घी भी अप्लाई किया जा सकता है, तो उससे आपका स्किन ग्लो इनहांस होगा। फिर आपका जनरल हेल्थ टिप्स, और उससे पहले एक क्वेश्चन आंसर सीरीज है, तो हम वो चलाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो। Which vitamin is good for skin glow? ऐसे नहीं, आप 1 बाय 1 करके बोलो। ऐसे नहीं, हैंड रेज करने हैं, हैंड रेज करने हैं। और वैसे भी दिस इज नॉट द एक्चुअल आंसर, कुछ कोई और एंड में जो है लास्ट बेंच विटामिन ई। और कोई तो होगा। नहीं, विटामिन के। तो ये तो आपका प्राइस नहीं बना भाई, चला गया। विच इज द बेस्ट डाइट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल? ओनली रेज योर हैंड्स। यस प्लीज। हाँ, इसमें अगर मुझे आप इन्फ्लामेटरी डाइट की वजह से आप और थोड़ा सा और क्लैरिटी कर दो। हाँ, प्लीज सिट डाउन। अनदर वन, उधर भी किया था किसी ने, नहीं? ओके, तो इसमें मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी करूंगी जस्ट, पर दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर। आपको गिफ्ट मिल जाएगा। तो एक क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। अच्छा, इसका आंसर में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि आयुर्वेदा में ना दिया हुआ है, जैसे शायद आपको पता हो कि जब किसी लड़की को पीरियड्स चलते हैं ना, तो उसको किचन में नहीं आने दिया जाता था। यू नो, हिंदू फैमिलीज में ज्यादा ये कल्चर में रहा है, सिख फैमिलीज में शायद इतना नहीं है। तो उसमें उसका मतलब वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ड्यूरिंग पीरियड्स उनको होता है कि किचन में जाएगी तो कुछ बना हुआ जो भी भोजन होगा वो खा लेगी। तो बेसिकली दैट टाइम कुक्ड फूड इज नॉट अलाउड। कुक्ड फूड हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? ताकि बॉडी की क्लिनजिंग हो जाए। क्लिनजिंग के लिए रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही रिक्वायर्ड है। तो अगर 3-4 डेज चलते हुए अगर हम रॉ डाइट पे रहेंगे तो हमारी बॉडी की क्लिनजिंग ज्यादा होगी और हमारा जितने भी यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है वो सारी की सारी सही हो जाती है। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट, what is the best food for your heart? आ तो रहा है। नहीं, हाँ बोलिए। लो, तो क्या कोई एक चीज तो बताइए। हाँ, तो किसने कम होता? यस प्लीज।
फाइबर रिच डाइट, हाँ। और जिसमें, हाँ ये भी कुछ हद तक ठीक है आंसर, एटलीस्ट आंसर तो दिया ना उन्होंने। यस प्लीज। हाँ ये भी ठीक है ऑलमोस्ट। वैसे इसका आंसर है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो एक किसी का आंसर जो पहले दिया था, हाँ उनको क्लैपिंग कर दो एक। नेक्स्ट इज विच हार्मोन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस। जब आपको स्ट्रेस होता है ये कॉमन हो गया भाई क्वेश्चन। एंड which hormone is increased during PCOS? एंड्रोजन। तो ये तो चलो एक क्वेश्चन से सीधी तो इतनी ही थी। तो उसके बाद हमने एक बात करनी है जनरल टिप्स। किस किस को होता है कि मैं अपना वेट रिड्यूस करूं, जिसका ज्यादा है ऑब्वियसली, और कौन कौन ट्राई कर चुके हैं कि हमने बहुत ट्राई किया बट नहीं हुआ। ओके ठीक। तो उसमें ये दोनों ने ट्राई किया। ओके वो ट्राई किया। ओके तो देखो आजकल जो यंगस्टर्स में मेनली प्रॉब्लम्स पता क्या आती हैं, मेजर उनके इश्यूज आते हैं कि एक तो वो अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उनको लगता है कि क्रेविंग्स ऐसे ही कंट्रोल हो जाएंगी कि आज मैंने सोच लिया मैं आज के बाद मीठा नहीं खाऊंगी तो मतलब नहीं खाऊंगी। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये नहीं कि हमने कसम ले ली तो हम रह पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको मीठे की क्रेविंग होती है या बॉडी कैसी भी, आपको प्यास लग रही है, आपको पानी पीने प्यास क्यों लग रही है, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो इसलिए आपको प्यास लग रही है, यू फील थर्स्टी, राइट। तो जब तक वो इंटरनल आपकी फीलिंग्स, इंटरनल आपके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स जब तक फुलफिल नहीं होती है तब तक आपको क्रेविंग्स रहेंगी। जब तक आपको उसका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है आपको क्रेविंग्स रहेंगी। जब तक आपका स्लीप पैटर्न सही नहीं है आपको क्रेविंग रहेंगी। जब तक आपके न्यूट्रिशन में पूरे न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व नहीं है आपको क्रेविंग रहेगी। ठीक है। तो बच्चे आजकल क्या करते हैं कि मान लो बर्गर भी नहीं छोड़ सकते, बर्गर खा लिया भी 800 मैंने बर्गर खा लिया तो उसमें 500 कैलोरीज होंगी, तो पूरे दिन की मुझे 800 कैलोरीज लेनी थी, 300 बच गई। 300 में मैंने सपोज एक दूध का गिलास पी लिया तो अब मैं और नहीं ले सकती हूं, तो दैट्स इट, मेरा हो गया। ऐसे टाइप का ही होता है ना कि आज मैंने बर्गर खा ली तो मैं कोई और लंच मिस कर दूंगी, मैं कोई और मील मिस कर दूंगी। तो ये सबसे डेंजरस है, सबसे ज्यादा डेंजरस है। आपने क्या किया, एक तो जो अपना हेल्दी न्यूट्रिशन वो छोड़ा, सपोज रोटी खानी थी रोटी नहीं खाई, मिस हो गई, और उसके बाद आपने क्या लिया, बर्गर ले लिया जिसमें आपकी समझो एम्प्टी कैलोरीज है, उससे कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलना है, सिर्फ आपके ये सिर्फ इंसुलिन को बढ़ाएगा, मतलब ग्लूकोज बढ़ेगा नेचुरली तो उससे इंसुलिन बढ़ेगा। जितना इंसुलिन बढ़ेगा उतने आपके स्टमक के अराउंड फैट ज्यादा आएगा। ये क्लियर करो, जितना बॉडी में इंसुलिन रिलीज होगा उतना आपके स्टमक के अराउंड फैट ज्यादा आएगा। तो इंसुलिन कहां से आया, अगर ग्लूकोज ज्यादा लिया, ग्लूकोज कहां से आया, कार्बोहाइड्रेट से आया। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाए तो ज्यादा ग्लूकोज ज्यादा इंसुलिन। बट कौन से टाइप खा सकते हो, जितने रिफाइंड ज्यादा खाए उतना ज्यादा ग्लूकोज, यू नो। तो इसीलिए हमें कौन से कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, नॉन रिफाइंड या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें उसका इंटेक ज्यादा करना चाहिए। तो जब भी आपने ये करना है तो सबसे पहले आपने अपने न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना है। न्यूट्रिशन इंप्रूव कर लिया, बैलेंस डाइट लेनी शुरू कर दी, ऑटोमेटिकली आपकी क्रेविंग्स बंद हो जाएंगी, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। आप मेक श्योर कि आप जो भी फास्ट फूड खाते हो तो हफ्ते में एक दिन खाइए, कोई एक दिन रख लियो, उसमें भी सिंगल टाइम, वंस इन अ वीक एंड वंस इन अ डे, राइट। तो उसको बस ये कर लो, उसके बाद कम पहले कभी नहीं खाना। तो इतना करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरा मैंने टाइमिंग ऑफ फूड बताया था,
उसमें क्या है कि शाम के 7 बजे तक खाना खा लीजिए, उसके बाद नथिंग, कुछ भी नहीं खाना। और एक है थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन में 3 मील्स आते हैं, मेन मील्स 3 होते हैं। 3 मील्स में 2 मील कुक्ड खाइए, 2 मील्स कुक्ड खाइए, जैसे दाल रोटी, दाल चावल, कुछ भी ऐसा खाया। 1 मील रॉ खाइए, 1 मील आपने रॉ खाना है। रॉ में क्या, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इंटेक, आप थोड़े नट्स एंड सीड्स ऐड कर सकते हो, ये चीजें, ठीक है। और वाटर इंटेक का ध्यान रखना, वाटर इंटेक ज्यादा से ज्यादा कीजिए। फिर आपका स्लीप साइकिल, वो एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं चलेगा, ठीक है। और जितने भी इमोशंस है उसको कंट्रोल कीजिए। गुस्सा, बेवजह गुस्सा नहीं करना, पेरेंट्स के साथ लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। होता है ना कि पेरेंट्स ने ये बोल दिया, क्यों बोल दिया, तो वो नहीं, मतलब जितना आप पेरेंट्स को खुशी देंगे उतनी आपको खुशी वापसी में मिलेगी, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपनी बॉडी की सिम्टम्स को पहचानिए। और किसी का कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन आगे आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पर टाइम। गर्ल्स मैम मैंने वेट लॉस के लिए ना जिम शुरू की थी, तो मेरा कुछ उससे हुआ तो है नहीं, मतलब डाइट भी शुरू की, कुछ नहीं हुआ, तो मैंने थका के फिर वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो वेट ट्रेनिंग शुरू की तो मेरे हेयर फॉल की दिक्कत, पिंपल वगैरह सब हो गई। तो फिर जो ट्रेनर था उसने बोला कि आप प्रोटीन लेना शुरू करो और नॉनवेज डाइट शुरू कर दो। तो नॉनवेज तो मैं ले नहीं सकती, प्रोटीन के लिए घर में लड़ाई हो गई कि लेना है, फिर मम्मा ने मना कर दिया कि नहीं लेना है। तो आप मुझे बताओ कि नॉर्मल लड़की के लिए जो एक्सरसाइज नहीं कर रही है, वेट ट्रेनिंग नहीं कर रही है, उसके लिए प्रोटीन इनटेक कितना होना चाहिए, और जो कर रही है उसके लिए कितना होना चाहिए? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आगे वैसे जो इन्होंने बात कही है। पहली बात तो ये है कि जब आपने वेट रिड्यूस करना है तो आपके लिए जिम जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल। क्योंकि जब आप जिम करते हो वेट रिड्यूस करने के लिए, बट और मैं ये भी कहूंगी दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि 80% रोल डाइट का है, 20% सिर्फ एक्सरसाइज का है। और अगर आप जिम करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो फैट है वो मसल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जब आपके मसल हार्ड होंगे तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप 10 दिन जिम नहीं जाओगे तो आपका अगेन जो फैट है दोबारा, सॉरी जो मसल है फिर दोबारा से फैट में आ जाएंगे और आपको वैसी बल्कीनेस लगेगी। तो राइट वे इज कि अपनी डाइट को ठीक करना है। दूसरा जो इन्होंने कहा प्रोटीन का, इन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो नो डाउट प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा नीडेड होता है, लेकिन एक नॉर्मल लड़की के लिए, आपका जो एज ग्रुप है उसके लिए आपको 45 ग्राम से प्रोटीन नॉर्मल केस में चाहिए। लेकिन अगर आप जिम करते हो, हार्ड जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 1.2 ग्राम्स पर केजी वेट के अकॉर्डिंग आप प्रोटीन लेते हो। और उसमें इट डजंट मीन कि आपने कोई डिब्बा बंद ऐसा पैक्ड प्रोटीन खाना है, वो कभी भी नहीं खाना है, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, चाहे आप कितना मर्जी जिम करते हो, क्योंकि उसमें डेड फूड है, उसमें लाइव फूड नहीं है, लाइव एंजाइम्स नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। ये जस्ट मार्केटिंग मतलब स्टंट्स है, तो और कुछ नहीं है ये, ठीक है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो डाइट में आपके जो फूड में है, जैसे दालें हैं, पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, आप स्प्राउट्स बनाइए, उसको कंज्यूम कीजिए। एंड अगर आप कर्ड खाते हो तो ये कर्ड खा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें चिया सीड्स हैं, तो इनको इंक्लूड करके आपकी प्रॉपर डाइट बन जाती है। बेसन है, बेसन में बहुत सारा रोस्टेड चना है, तो इन सबकी स्मूदी की फॉर्म में या मील्स में या चीलास वगैरह में इनमें ऐड करके आप आराम से 100 ग्राम प्रोटीन अपना पूरा कर सकते हो। तो वो कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं है। और दूसरे जो पिंपल्स की बात है या हेयर फॉल की बात है, हेयर फॉल क्यों होता है आपको पता है? हेयर फॉल का एक मेन रीजन क्या है कि जब आप अनहेल्दी खाते हो या फूड जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो हमारी बॉडी में ऐसे ही पड़ा रहता है। अंदर पड़ा रहने की वजह से क्या होता है, वो नेचुरली जब इंटेस्टाइन के थ्रू, विलाइज के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड हैवी हो जाता है, थिक हो जाता है ब्लड, क्योंकि उसमें ब्लड भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, बट साथ में इंप्योरिटीज भी हैं। तो इंप्योरिटीज होने की वजह से तो ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है, जो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता।
जब ब्रेन तक नहीं जाता, हेड तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो हेयर फॉल होता है। ऐसी जो एक्ने है, एक्ने अंदर गंदगी मैंने बता दिया, वो बाहर आपको दिखेगा ही दिखेगा। जब तो पीसीओडी की प्रॉब्लम भी तो इसीलिए स्टार्ट होती है ना, क्योंकि अंदर आपका सिस्टम ही नहीं क्लीन है, गट क्लीन नहीं है। और एक्ने भी, अगर आपके सपोज चीक्स पे एक्ने है तो उसका मतलब है कि आपका स्टमक सही नहीं है, आपकी गट सही नहीं है और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। अगर आपके चिन पे एक्ने है तो इट मीन्स कि आपके हार्मोनल इश्यूज की वजह से है। अगर आपके नोज टिप पे एक्ने है तो मतलब कि आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर ये चीक्स के नीचे इधर दोनों साइड पे एक्ने है तो इट मीन्स आपका लिवर एंड किडनी वो सही से काम नहीं कर रही है। तो हर एक कहीं पे भी बॉडी पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका एक साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन के कारण ही वो चीजें हैं। ऐसे कभी कुछ भी करो ना। हाँ, हाँ। अभी मैं माइक हैंड ओवर कर रही हूँ सर को। हाँ जी प्लीज। हाँ हाँ और कई बार ऐसा होता है कि जैसे एरिया चेंज करते हैं फ्रीक्वेंटली वेट लॉस होने लगता है। तो उसमें जैसे मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल में एक बात बताई थी ना, न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। तो बॉडी टाइप में जो एयर एलिमेंट होता है मेनली प्रॉब्लम उसको आती है। जो एयर एलिमेंट है वो कभी वेट गेन करता ही नहीं है, जितना मर्जी खाए उसका कभी वेट गेन ही नहीं होगा। उसके लिए प्लस पॉइंट भी है बट नेगेटिव भी है। तो जब भी मतलब जब वो बहुत रिलैक्स हो जाएगा माइंड से, तो हो सकता आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहता। रिलैक्स इन द सेंस आप बहुत सोचते हो, आपको होता है कि मैं अपना काम जल्दी से कर लूं, निपटा लूं, मैं वहां भी 100% देना है, वहां करना है, इसमें मैंने आगे जाना है, या ये भी काम करना है साथ में स्टडीज के साथ। तो ऐसा टाइप कई बार ब्रेन ऐसे काम करता है तो आपका वेट गेन नहीं होने देता। तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मील कभी भी मिस मत कीजिए। हैवी ब्रेकफास्ट, हैवी लंच, हैवी डिनर आपको चाहिए, और इवन डिनर आप 8 बजे तक कीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हॉस्टलर्स में तो नहीं, वहां पे ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है। हाँ नहीं, वो उसमें जैसे आप जैसी बॉडी जिसने वेट गेन करना है वो ब्रेकफास्ट हैवी करे, फ्रूट्स वो मिड मॉर्निंग ले 11 बजे। मिड मॉर्निंग में फ्रूट्स खाइए, सुबह ब्रेकफास्ट हैवी पराठा चीला जो भी खाना आप वो खाइए, है ना। तो ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप लोगों को ने हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैम का बहुत थैंक यू जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। हम सिर्फ आपसे थोड़ी सी बातें डिस्कस करने आए थे और बहुत टाइम लग गया, आपने बहुत डिटेल में चीज़ों को समझा, बहुत पेशेंस से समझा, और इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू है। अपने आप के लिए क्लैपिंग कीजिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और उसके लिए एक प्राइस भी है, आप सिर्फ अपना हाथ खड़ा करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाथ खड़ा करेंगे आप अपना। हाँ जी बताइए। हेल्थ। कोई और? हाँ जी आप बताइए। और जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमें पता लगता है कि अगर शरीर चला गया तो पढ़ाई भी नहीं होगी। तो बॉडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बताइए। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और? कोई और? हाँ जी आप बताइए। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? बट अगर हमने सोच लिया कि हो जाएगा तो
ठीक है, चलो अब मैं आपको इसका एक आंसर बताता हूँ, और उसके लिए आप सब लोग को ये आंसर पता चल गया, इसके लिए आप क्लैपिंग करना। यूनिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ। हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर अगर लाइफ ही नहीं होगी तो कुछ इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ। और लाइफ क्या चीज है? बेसिकली लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लाइफ का मेन पर्पस क्या है? क्या लाइफ का पर्पस इंजॉय करना है? हाँ, इंजॉय करना है। तो ये भी एक लाइफ का पर्पस है, इंजॉय करना भी लाइफ का पर्पस है। लाइफ के हमारे 5 पर्पस है। एक है हमारी फिजिकल हेल्थ, और दूसरी है हमारी मेंटल हेल्थ, और तीसरी है हमारी स्किल्स की हेल्थ। जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो उससे आप कुछ ना कुछ स्किल्स सीखोगे, तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, आपकी पोजीशनिंग के लिए, आपके लेवल के लिए। और चौथी चीज है आपकी रिलेशनशिप हेल्थ। रिलेशनशिप हेल्थ क्या होती है? जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, फ्रेंड्स हैं, सारे लोग हैं, इसी से लाइफ में इंजॉयमेंट आती है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा तो आपकी लाइफ में कोई भी इंजॉयमेंट नहीं होगा। और 5वीं चीज क्या है? आपकी वेल्थ की हेल्थ। आपके पास वेल्थ भी होनी चाहिए। अगर वेल्थ नहीं होगी तो एंजॉयमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो ये 5 पिलर्स हैं हमारी लाइफ के। तो हमें 5 पिलर्स को अपनी लाइफ में लेके आने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमें 5 पिलर्स को अपनी लाइफ में लेके आने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो मेंटल स्ट्रांग होने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाता हूं। अभी आप सब लोग डीप ब्रीथ करेंगे। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए और एक डीप ब्रीदिंग लीजिए, बहुत लंबा सांस लीजिए। इसके बाद आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट कर लीजिए। बैकबोन को स्ट्रेट कर लिया। अब अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए और कोशिश करिए आंखें बंद रखें। डीप ब्रीदिंग, बैकबोन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स। तो ये आपको मेंटली स्ट्रांग करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसकी पीपीटी हम आप सबको भेज देंगे आपके व्हाट्सएप के ऊपर। और जब भी आपको लाइफ में कभी मेंटली अपने आप को स्ट्रांग फील करने की जरूरत पड़े तो आपने ये एक्सरसाइज निकालनी है और कर लेनी है, तो उससे आप बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे। डीप ब्रीथ, शोल्डर्स रिलैक्स, बैकबोन स्ट्रेट। अब आपने अपने मन में सोचना है आंखें बंद करके कि डे बाय डे इन एनी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। डे बाय डे इन एनी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये फर्स्ट स्टेप है। इसके टोटल 3 स्टेप हैं। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, हमारी लाइफ में हमने कुछ गलतियां कर दी होंगी तो हमने अपने आप को माफ कर देना है। आई फॉरगिव माई सेल्फ। आई फॉरगिव माई सेल्फ। इसको अपने मन में दोबारा से रिपीट करना है। और इसी का सेकंड पार्ट है, हो सकता है आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिससे आपके कुछ रिलेशनशिप्स में या आपके पेरेंट्स को या आपके फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगा, तो आप उनसे जाके माफी तो नहीं मांग सकते पर अपने मन में उनसे माफी जरूर मांग सकते हो। तो आई एम आस्किंग फॉर योर फॉरगिवनेस। तो आपने मन में उनसे माफी मांग लेनी है कि आई एम आस्किंग फॉर योर फॉरगिवनेस। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या आपने फील करना है कि आई एम ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल टू गिव मी लाइफ टू लिव एंड एंजॉय। जो भी आपके भगवान हैं, जो भी आपके, जिसको भी आप मानते हो सुपर नेचर है, उसको आपने बोलना है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गिव मी लाइफ टू लिव एंड एंजॉय। आपको जो लाइफ मिली है उसको आपने जीना है और एंजॉय करना है।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मेंटल स्ट्रेंथ का लेसन। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव है। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए और अब अपने आप को आप बड़ा ही रिलैक्स महसूस करेंगे। तो ये कभी भी आपको लाइफ में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना हो तो इसको आप कभी अकेले में करके देखना, और जब भी आप इसको अकेले में करोगे तो आप अपने आप को बहुत मेंटली स्ट्रांग पाओगे। तो हमें मेंटली स्ट्रांग किस लिए बनना है? लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो हमारे लिए इस यूनिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लाइफ है। थैंक यू वेरी मच। मैम आपके सामने कंप्लेंट भी है मैम की है। ओके आपने सुषमा मैम की कंप्लेंट है। आप हाँ जी आपने बोला खाने के बाद मीठा नहीं खाना है ना, और ये हमारे लिए हर दूसरे दिन डिब्बा लेके आ जाते हैं। ये मीठा खाते नहीं है और हम हर दिन में डिब्बा खराब करते हैं। मेरे को इन्होंने मना किया हाँ, ये हमारे लिए हर रोज डिब्बा ले आते हैं। तो आज से तो चेंज हो जाएगा ना। आज अब पहले नहीं, खा लेंगे। हमारे लिए नहीं अब पहले खा लेंगे ना। पहले खा लिया करेंगे, ये हम उल्टा करते हैं। हम बहुत सारी चीजें उल्टी कर देते हैं। हम कीनू और गाजर का जूस पी के आते हैं स्पेशली। सैलेड हम बाद में खाते हैं। हम फ्रूट भी खाने के बाद खा लेते हैं। हम बहुत कुछ उल्टा करते हैं जो आपने करना। और इसीलिए हमें समझ आया मैम पालक पनीर क्यों नहीं लाते हैं, क्योंकि पालक लाते हैं। थोड़े थोड़े राज खुल गया आज हमारे। Insightful and engaging session on diet consultations for young girls. Your expertise in this field and the practical advice you have shared with us has given a deeper understanding of the importance of a balanced diet and healthy lifestyle. The tips and strategies you discussed today will surely help our students make informed choices about their nutrition and well being. On behalf of everyone here, I thank once again Madam Deep and her entire team for this wonderful interactive session with our students. It has been an absolute privilege to have you with us, and we hope to connect with you again in future. I also thank my team members, Madam Shivani, Dr.